गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ VKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅੱਜ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਤੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 2-4 ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद, सिद्धूपुर किसान एकता जिंदाबाद, सिद्धूपुर किसान एकता जिंदाबाद। एकता रखनी बहुत जरूरी है। सरकारें बड़ी चालें चलेंगी, बहुत चालें आती है राजनीतिक लोगों को। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, पंजाब और हरियाणा जब बनाया गया है और उससे भी पीछे जब पाकिस्तान बनाया गया, इन 2-3 घटनाओं को अगर आप ध्यान में लोगे तो समझ आएगी कि आप जो लड़ाई लड़ने वाले लोग, आप जो आंदोलनकारी विचारधारा वाले लोग, आपको कमजोर करने के लिए शुरू से ही षड्यंत्र होता रहा है। देखिए जब पाकिस्तान बन रहा था ये खिता और पाकिस्तान को दे देते भाई, बंगाल में जाकर वो एक पार्ट
इजाजत देने की क्या जरूरत थी? समझ आ रही है बात आपको? कारण क्या था कि आंदोलन करने वाले लोग, ये जो पंजाब, वो पंजाब, ये पंजाब नहीं, वो पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वाला पंजाब, उसका एक बड़ा हिस्सा काट कर पाकिस्तान को इसलिए दिया कि इनकी ताकत, इनकी शक्ति को बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। और उधर बंगाल ने उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भी बराबर हिस्सा डाला। बेशक हमारे से कुछ पीछे रह गए हों भाई, लेकिन उन्होंने किया। इसीलिए वहां पर जाकर एक हिस्सा पाकिस्तान बनाया उन्होंने, इसीलिए बना था कि अब इसको भी बांटना है। ये ताकत एक जगह पे नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद जब इन लोगों को पता चला कि ये पंजाब के जट और हरियाणा का जट, इनके अंदर जो लड़ाई लड़ने का मादा है, अगर ये एक रहेंगे तो दिल्ली पर बैठने वाले को चैन की नींद सोने नहीं देंगे, आराम से दिल्ली की गद्दी पे आराम से बैठने नहीं देंगे। उनके लिए फिर एक षड्यंत्र रचा कि पंजाब से हरियाणा को अलग किया। और उनको अलग करने के बाद SYL जैसे मुद्दे खड़े करके लगातार पंजाब और हरियाणा को आपस में लड़ाने का एक नया काम कर दिया, ताकि कभी ये लोग आपस में जफ्फी बना पाए, कभी आपस में मिलकर ना बैठ जाए। ये कोशिश की। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरी बहुत बार बात होती है मनु से, आप आज भरपूर मात्रा में हरियाणा के समझदार लोग बैठे। देखिए, नेट पे निकालो, एक बार गूगल से निकालो, शारदा जमुना लिंक चैनल क्या था। अगर शारदा जमुना लिंक चैनल पे काम हो जाता, जितना पानी हरियाणा को चाहिए, इससे कहीं ज्यादा पानी हरियाणा को उधर से मिलता था। और राजस्थान को जितना पानी चाहिए था, वो भी शारदा जमुना लिंक चैनल के माध्यम से आकर 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिले पंजाब को भी उसमें जोड़ दिए गए थे कि यहां तक वो पानी आएगा। ईमानदारी से बताएं कि भाई हरियाणा के किसानों ने तो पानी खेती करने के लेने के लिए लेना है, पानी में डूबना थोड़ी था। अगर इनको वो पानी मिल जाता, क्या पंजाब और हरियाणा का झगड़ा होता? बताए नहीं होता। क्यों भाइयों, हरियाणा वाले भाइयों बताओ? नहीं होता जी, नहीं होता ना। अनिल वो झगड़ा खड़ा करने के लिए वो शारदा जमुना लिंक चैनल को बंद किया। इधर से किसान और मजदूर, किसान पंजाब और हरियाणा को आपस में बांटकर एक दूसरे के दुश्मन बनाकर खड़े कर दिया। ये राजनीतिक खेल है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब लड़ाइयां लड़ेंगे। अब लड़ाई क्या है? जमीन को बचाने की। जो बहुत लोग बोल देते हैं जमीन को बचाने की लड़ाई है, जमीन को बचाने की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि जो जमीन को बचाने की हम बात कर रहे हैं, तो सवाल आपके अंदर ये पैदा होना चाहिए कि जमीन भाई जाएगी कहां? क्यों छीननी चाह रहे हैं वो लोग जमीन हमारे से? ये सवाल आपके अंदर पैदा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, वो लोग आपकी जमीन इसलिए छीनना चाहते हैं, उनका मानना है अगर आप में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा बैठा होगा, किसी ने पढ़ा होगा, तो मेरी बात बहुत जल्दी इतने समय में समझ आ जाएगी उसको। देश की जीडीपी जब बढ़ती है, देश की जीडीपी जब बढ़ती है तो मजदूर के माध्यम से बढ़ती है।
मजदूर की मजदूरी से बढ़ती है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब समय तो समय की बात हो रही है। मान लीजिए कैसे बढ़ती है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मिट्टी पड़ी है, ये बड़ी आसान सी मिसाल है। मिट्टी तो मिट्टी है, अगर उसको किसी अच्छे मिस्त्री कुम्हार के हाथ लग गई, उसको उठाया, गूंद लिया, गूंदने के बाद चक पे चढ़ा दिया तो बर्तन बन गया। वो बर्तन पकाकर मार्केट में आ गया, वो 300 रुपया पैदा होगा। हो गया या नहीं हुआ, बताए? हो गया ना? वो ये चाहते हैं, उनका मानना है कि खेती करने वाले जो लोग हैं, इनमें केवल 40% हाथ काम करते हैं, 100% हाथ काम नहीं करते। ये मानते हैं ये लोग। वो कैसे? वो मानते हैं कि एक बुजुर्ग बाप काम नहीं करता, बुजुर्ग माँ भी काम नहीं करती, छोटा बच्चा स्कूल जाता वो भी काम नहीं करता। घर में 5 मेंबर है, 5 के 5 में से 3 के हाथ भाव, मतलब 6 हाथ काम नहीं करते। वो घर वाला भाई साहब और उनकी वाइफ, वो 2 काम करते हैं। उनका मानना है कि ये जो 40% लोग काम करते हैं, ये इसीलिए है। वो 60% हाथ से काम नहीं करते, वो इसीलिए है कि ये लोग खेती के ऊपर निर्भर है। अगर उनसे खेती छीन ली जाए, इनकी मजबूरी बन जाए कि इनको आकर किसी ना किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, किसी जगह पे काम करना पड़े, और जब ये काम करेंगे तो नया नया सामान बनेगा। जब नया नया सामान बनेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। इन लोगों का ये मानना है, इसलिए आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। इसी वजह से जब ये लोग आपको एमएसपी देते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा थोड़ी बात। जब आपको एमएसपी देते हैं, बहुत बड़ी ठगी होती है आपके साथ। जो कमेटी रिकमेंड करती है, रिपोर्ट देती है, उसको पहले से हदायत हुआ करती है कि जो इन लोगों का रेट रिकमेंड करके बेचना है, जितना इनका लागत खर्चा हो उसमें से कम 20% कम करके भेजो, और वो 20% कम बेचते हैं। आगे 4% 5% उनको रेट तय करने वाले को अख्तियार होता है, उनके पास अधिकार होता है, वो कम करता है। मेरे भाइयों देखिए, मान लीजिए आपका लागत खर्चा 2000 आया है, तो वो जब रेट तय करेंगे वो 500 रुपया तय करेंगे। जब आपको 500 रुपया रेट मिलेगा कम उससे लागत खर्चे से, तो बताएं फिर आपके सर पे कर्ज नहीं होगा तो क्या होगा? वो आपके सर पे कर्ज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि इन लोगों से अगर जमीन लेनी है, किसी तरह की जोर जबरदस्ती ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके साथ षड्यंत्र रचना पड़ेगा, वही रखते हैं, और आपकी जमीन छीनने के लिए आपकी फसल का भाव कम देने का ये षड्यंत्र है जो ये लोग रखते हैं। एक और मैं पीछे ले जाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ एडवोकेट भाई बैठे हैं, ये और भी ज्यादा मेरे से भी बेहतर जानते हैं, समझते होंगे। आप लोगों को पता होगा कि देश का संविधान कब बना? 1950 में, ठीक है भाई, यही था। 2050 में बना। बहुत सारे लोगों को भुलेखा है। 1950 में, जब 1950 में देश का संविधान बन रहा था, बहुत सारे लोगों को यह प्रचार किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह संविधान लिखा है। यह भी लिखा है, केवल डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था,
लगभग 300 के करीब उस कमेटी के मेंबर थे। आपको आगे देखना क्या मिलेगा इस बात में से। जब 300 आदमी किसी रूल और रेगुलेशन को लिख रहे होंगे, मेरा ख्याल है उसमें जल्दी कोई किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्यों भाइयों, रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी ना। बहुत समझदारी से काम हुआ होगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में सबसे पहली तब्दीली हुई है वो कब हुई पता आपको? ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों को पता होगा। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उन सभी स्टूडेंट को पता होगा। केवल 1.5 साल